Hello everyone and welcome to the next lecture on the topic of linear transformations. And in this lecture we will discuss about null space and range space of a linear transformation. Now let us first of all discuss what is null space or kernel of a linear transformation. So null space of a linear transformation is also known as kernel of a linear transformation. So what do you understand by null space? If T from U to V is a linear transformation, then null space is the subset of U and it consists of all the vectors of U that have image under T equal to 0. So कर्नल ऑफ T या जो नल स्पेस ऑफ T है वो कैपिटल U का एक सबसेट होता है, इस वेक्टर स्पेस U का एक सबसेट होता है और इसमें कैपिटल U के वो सभी वेक्टर्स लाई करते हैं जिनकी इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T 0 के इक्वल होती है. ओके, सो दोज vectors of U that have image equal to 0 of V under the linear transformation T, they make a subset of U and that subset of U is called as null space or kernel of linear transformation T. So what is kernel of T? Kernel of T can be written in this form, in the set builder form, as it contains U belonging to U such that T of U is equal to 0 and this 0 will belong to the vector space V. ठीक है, तो जिन U के जिन एलिमेंट्स की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T 0 ऑफ वेक्टर स्पेस V के इक्वल है, दे फॉर्म कर्नल ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T. ओके, नेक्स्ट we have this theorem. If let T from U to V be a linear transformation, then T is 1 1 if and only if null space of T is singleton set 0. ओके, तो कहते हैं कि T जो है वो 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस हैज ओनली वन एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज T इज 1 1. अगर T 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने शो करना है कि नल स्पेस में सिर्फ एक 0 वेक्टर होगा और कोई एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा. सो लेट x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ T. इसका क्या मतलब हो गया कि अगर x नल स्पेस में है तो इसका मतलब इमेज ऑफ x अंडर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T वुड बी इक्वल टू 0 एंड 0 ऑफ v. तो यहाँ बार बार हम 0 ऑफ v नहीं लिखेंगे, इट इज अंडरस्टूड कि tx v का एलिमेंट है तो tx मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑफ v. ओके, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ नल T और नल स्पेस ऑफ T. ओके, सो t of x is equal to 0 and also we know that T of 0 is equal to 0. अगर ये 0 एलिमेंट है U का तो हमें पता है कि अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T of 0 is always equal to 0 because T is a linear transformation and T of 0 is always equal to 0. Now T of x is equal to T of 0 implies x is equal to 0. Why? ऐसा क्यों है? Because T is 1 1. यहाँ पर हमें T क्या दिया हुआ है? T एक 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर Tx और T0 इक्वल है then x must be equal to 0. Now x was any arbitrary chosen element of NT, null space of T. तो इसका हमने एक एलिमेंट x चूज किया और वो एलिमेंट 0 के इक्वल आया. इसका क्या मतलब हुआ कि दिस सेट null space of T has only one element that is equal to 0 vector. So one part is proved here that if T is 1 1 then null space of T is singleton set 0. Now conversely आपको गिवन है कि नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू 0 वेक्टर ओनली. ओके, नाउ सपोज देयर एग्जिस्ट u1 and u2 belonging to capital U such that T of u1 is equal to T of u2, which implies T of u1 minus T of u2 is equal to 0, which implies T of u1 minus T of u2 can be written as T of u1 minus u2. So this means T of u1 minus u2 is equal to 0. Why? Because T is a linear transformation. Because T is a linear transformation, so T of u1 minus T of u2 can be written as T of u1 minus u2. अब इसका ये मतलब हो गया कि अगर
u1 माइनस u2 की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 के इक्वल है, दैट मीन्स u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t, है ना। जिस एलिमेंट की इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन t 0 एलिमेंट के इक्वल है वो नल स्पेस में बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t, and null space of t has only one element 0, that means this element u1 minus u2 must be equal to 0. क्यों? Because null space of t is equal to singleton set 0. So u1 minus u2 is equal to 0 implies u1 is equal to u2. So we started with t of u1 is equal to t of u2 and we have reached at this place, that is u1 is equal to u2, और u1 और u2 हमने आर्बिट्ररी कोई दो एलिमेंट लिए थे कैपिटल U के। सो आई कैन राइट, सो हम क्या लिख सकते हैं, t of u1 is equal to t of u2 implies u1 is equal to u2 for all u1 u2 belonging to vector space U, and therefore t is 1 1. Okay, so if null space of t has only 0 vector in it, then t must be a 1 1 linear transformation, and conversely if t is a 1 1 linear transformation, then null space of t has only 0 element or 0 vector in it. Alright, so next we are going to discuss one more theorem related to this null space or kernel of a linear transformation t. Let t from U to V be a homomorphism, that means t from U to V is a linear transformation, then we have to show that kernel of t is a subspace of U. So अब हमने इस सेट को कर्नल ऑफ t को, ये हमें पता है कि कर्नल ऑफ t जो है वो U का एक सबसेट है। अब हम प्रूव करेंगे कि इट इज़ ए सबस्पेस ऑफ U। तो पहले तो हम ये शो करेंगे कि इट इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U। ओके, सो आई विल राइट कि देयर एग्जिस्ट दिस जीरो एलिमेंट 0 of U, 0 element belonging to U such that हमें पता है कि अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 की इमेज क्या होगी, 0 of V, U की जो 0 होगी उसकी इमेज क्या होगी, 0 of V। तो इस एलिमेंट की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 के इक्वल है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 एलिमेंट है U का, दैट मस्ट बिलोंग टू कर्नल ऑफ t। ठीक है, सो हेंस कर्नल ऑफ t इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U, क्योंकि कम से कम एक 0 एलिमेंट तो ऐसा है ही है जो कर्नल ऑफ t में बिलोंग करेगा ही करेगा। ओके, 0 एलिमेंट जो होता है वो U में बिलोंग करता है और 0 एलिमेंट की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 के इक्वल होती है। सो 0 मस्ट बिलोंग टू कर्नल ऑफ t, हेंस कर्नल ऑफ t इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U। अब इसको हमें सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबस्पेस कैसे प्रूव करेंगे? सबस्पेस प्रूव करने के लिए मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ A और B फील्ड F के। सपोज U एंड V आर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and I take any element U and V belonging to the kernel of T, then we have to prove that AU plus BV belongs to kernel of T। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि A into U plus B into V belongs to kernel of T, then according to the theorems, according to the results that we have did earlier, हम ये प्रूव कर पाएंगे कि कर्नल ऑफ T इज ए सबस्पेस ऑफ U। सो क्या शो करना है? I have to show that AU plus BV belongs to kernel of T। अब देखिए कि AU plus BV जो है ये कर्नल ऑफ T में कब बिलोंग करेगा? अगर AU plus BV की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T 0 के इक्वल हो। ओके, तो हमने ये शो करना है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वी हैव टू शो दिस, ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट AU plus BV belongs to kernel of T, और ये तभी पॉसिबल होगा when T of AU plus BV is equal to 0। सो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये आप ध्यान में रखें। नाउ यू सी U and V belongs to kernel of T, इसका मतलब हो गया कि T of U जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड T of V जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक? नाउ व्हाट अबाउट
T of AU plus BV. T of AU plus BV. Now this can be written as A into T of U plus B into T of V because T is a linear transformation. ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? Because T is a linear transformation. So that is A into 0 plus B into 0. So that is equal to 0 only. So इसका ये मतलब हो गया कि T of AU plus BV is equal to 0. That means AU plus BV belongs to kernel of T. So I can write, क्योंकि A, B, U और V को हमने आर्बिट्रेरी चूज किया था, so I can write AU plus BV belongs to kernel of T for all AB belonging to the field F and UV belonging to the vector space U. Hence, kernel of T or null space of T is a subspace of U. So जो null space होगा, जो kernel होगा, that would always be a subspace of U. तो कर्नल ऑफ टी यू का सबसेट तो है ही है, सबसेट होने के साथ साथ वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज ए सबस्पेस ऑफ यू. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू द रेंज और इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. रेंज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर टी फ्रॉम यू टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रेंज या इमेज ऑफ टी जो है ये उन सारे वेक्टर्स का सेट होगा, वी के वेक्टर्स का सेट होगा. तो रेंज जो है वो v का एक सबसेट होगा, इट विल बी ए सबसेट ऑफ v, और ये v के उन वेक्टर्स का सबसेट होगा जिन प्री इमेजेस u में है. दैट मींस contains all the vectors in v that are images of vectors in u under the linear transformation t. So रेंज और इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, ये v का सबसेट होगा और इसमें v के वो वेक्टर्स होंगे जो u के किसी ना किसी वेक्टर के इमेज है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t. ओके, सो रेंज स्पेस ऑफ t को हम RT से डिनोट करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द टाइप t ऑफ u वेयर u बिलोंग्स टू कैपिटल U. देखो अगर u कैपिटल U में बिलोंग करता है तो t ऑफ u हमेशा v में बिलोंग करेगा. सो इट इज ए सबसेट ऑफ v एंड इट कंटेन्स the vectors of v that are images of vectors in u. ठीक है, all right. So next we are going to do a theorem related to this. Let t from u to v be a linear transformation, then range of t, that is RT, is a subspace of v. तो जैसे मैंने आपको बताया कि RT जो है वो v का एक सबसेट है और सबसेट होने के साथ साथ ये v का एक सबस्पेस भी होगा. सो अब हम यहाँ प्रूव करेंगे कि रेंज स्पेस ऑफ टी, दैट इज आर टी, इट इज ए सबस्पेस ऑफ वी. ये वी का एक सबस्पेस है. सो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर जीरो बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस u. मतलब अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ जीरो जो वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है, तो ये जीरो जो है वो वेक्टर स्पेस u की जीरो की इमेज की फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो व्हाट इज जीरो? जीरो इज इमेज ऑफ जीरो अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो v की जीरो है, दिस जीरो बिलोंग्स टू द सेट रेंज स्पेस ऑफ t. सो RT जो है, रेंज स्पेस ऑफ T जो है, दैट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. इट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर ये सपोज एक वेक्टर स्पेस U है, ये सपोज एक वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, इसकी जो जीरो होगी अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, जीरो की इमेज हमेशा जीरो के इक्वल होती है. इमेज ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो जीरो की इमेज जो है वो जीरो के इक्वल है. तो इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसा है जो जीरो की इमेज है, ठीक है. तो ये एलिमेंट हमेशा RT में बिलोंग करेगा ही करेगा. इसके अलावा सपोज U1, U2 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं, U के V1, V2 एंड सो ऑन ये एलिमेंट है. सपोज U2 की इमेज है V1, तो V1 जो है वो बिलोंग करेगा RT में. सपोज U1 की इमेज है V3,
तो v3 बिलोंग करेगा r2 में। सपोज v2 की कोई प्री इमेज u के अंदर बिलोंग नहीं करती तो v2 जो है वो r2 में rt में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट जीरो जो होगा, जीरो एलिमेंट विल ऑलवेज बिलोंग्स टू द रेंज स्पेस ऑफ t एंड जीरो ऑफ v। वेक्टर स्पेस v की जो जीरो होगी वो rt में बिलोंग करेगी, सो rt इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v। ओके, सो जो रेंज स्पेस है वो v का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए उसी तरह से आप a और b कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए फील्ड f के, वेयर u एंड v आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f, एंड आप v1 और v2 कोई दो एलिमेंट ले लीजिए रेंज स्पेस t के। वी हैव टू शो दैट a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 बिलोंग्स टू r2। उसके लिए मुझे शो करना है कि a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 इज ए इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस u। अब देखिए v1 और v2 rt में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि v1 कैन बी रिटन एज t ऑफ u1 फॉर सम u1 बिलोंगिंग टू u, एंड v2 कैन बी रिटन एज t of u2, so v1 is equal to t of u1 and v2 is equal to t of u2 for some u1 u2 belonging to vector space u. Now what about a v1 plus b v2? So a v1 plus b v2 is equal to a times t u1 plus b times t u2. So this can be written as t of a u1 plus b u2, and it belongs to range space T. Why? Because a u1 plus b u2 belongs to vector space u। देखो u1 u2 u के एलिमेंट है, a और b कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट है, तो बिकॉज u इज ए वेक्टर स्पेस तो a u1 प्लस b u2 u में बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब हो गया कि a v1 प्लस b v2 इट इज इमेज ऑफ a u1 प्लस b u2 अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, and therefore a v1 plus b v2 belongs to range space t. So I can write a v1 plus b v2 belongs to range space t for all a b belonging to f and v1 v2 belonging to vector space v, because a b and v1 v2 were arbitrarily chosen. Hence range space of t is a subspace of v। ठीक है, तो नल स्पेस जो होगा वो u का सबस्पेस होगा और रेंज स्पेस जो होगा वो v का सबस्पेस होगा। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ डिस्कस वन मोर थ्योरम। इफ t from u to v is a linear transformation and if u1 u2 and so on un are linearly independent vectors of u and t is 1 1, then t of u1 t of u2 and so on t of un are also linearly independent। अगर हमारे पास t एक 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस u टू ए वेक्टर स्पेस v, देन अगर u के वेक्टर्स u1 u2 एंड सो ऑन un दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन u, देन उनकी जो v में इमेजेस होंगी, मतलब t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un, ये वेक्टर्स v के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बट हियर t मस्ट बी ए 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो अब हमें t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो हम मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स जो उसी फील्ड f से बिलोंग करेंगे जिसके ऊपर u और v दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं। सो देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स a1 a2 एंड सो ऑन an सच दैट, मान लीजिए a1 a2 an के साथ अगर हम t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो वी पुट दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। So a1 t of u1, a2 t of u2 and so on an t of un is equal to 0। Now अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो मुझे शो करना है कि ये सारे जो स्केलर्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो ये सारे स्केलर्स भी 0 होने चाहिए। Now this can be written as t of a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un is equal to 0, and this can further be written as t of a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un is equal to, this 0 can be replaced by t of 0, because हमें पता है कि 0 की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 के इक्वल होती है, and because t is 1 1
क्योंकि t 1 1 है और t of a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन an un t of 0 के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un must be equal to 0. Why? Because t is given to be 1 1. t यहाँ पर हमें 1 1 दिया हुआ है. All right. Now this implies a1 must be 0, a2 must be 0 and so on an must be 0. Why? Because अब ये u1 u2 एंड सो ऑन un का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ गया और ये सेट जो है u1 u2 एंड सो ऑन un का, ये सेट हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है कि दिस द सेट u1 u2 एंड सो ऑन un दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो इनका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पर ये सारे स्केलर 0 आ गए और ये सारे स्केलर्स हमने t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un के साथ लिए थे और दैट मीन्स t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un, ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V. तो अगर u1 u2 एंड सो ऑन un u के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो उनकी इमेजेस जो होंगी t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un वो V में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी अगर t आपका एक 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर t 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये तभी ट्रू है. ऑलराइट. और अगर आप यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट की जगह लीनियरली डिपेंडेंट लोगे तब भी ये रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा. मीन्स if t from u to v is a linear transformation and if u1 u2 and so on un are linearly dependent, अगर यहाँ पे linearly dependent vectors of u ले लेते हैं and t is 1 1, then t of u1 t of u2 and so on t of un are also linearly dependent in v. तो अगर t 1 1 linear transformation है तो linearly independent vectors की इमेज linearly independent होंगी और linearly dependent vectors की इमेज जो है वो linearly dependent होंगी. तो जैसे हमने इस थ्योरम में लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए प्रूव किया है तो सिमिलरली हम लीनियर डिपेंडेंस के लिए भी उसको प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट. अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू ए रिमार्क. The images of linearly independent vectors under a linear transformation need not be linearly independent. तो linear transformation अगर 1 1 होगी तभी linearly independent vectors की जो images हैं वो linearly independent होंगी. Otherwise the images of linearly independent vectors need not be linearly independent. For example, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि सपोज t is a linear transformation from R3 to R2 such that t of xyz is an element of R3 and इसकी इमेज है xy which is an element of R. Okay, so this linear transformation, this function is a linear transformation and you can very well check that this is not 1 1. Now let u is equal to 1 3 4 and v is equal to 2 6 minus 1. Suppose these are two elements of R3. ये R3 के हमने दो एलिमेंट्स लिए. क्लियरली u और v का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर एज u एंड v आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर. दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. नाउ what is t of u? T of u is t of 1 3 4, so that is nothing but equal to 1 3 only. And what is t of v? T of v is t of 2 6 minus 1, so that is equal to 2 6 only. Now t of v is 2 times t of u, that is scalar multiple of t of u. T of v is scalar multiple of t of u. इसका मतलब क्या हो गया? This means t of u
एंड टी ऑफ वी, ये जो सेट है, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो यू और वी R3 में लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, लेकिन टी ऑफ यू और टी ऑफ वी R2 में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की इमेज जरूरी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और इसी तरह से लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की इमेज जरूरी नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।